hidden goodwill is equal to capital of new partner multiplied by reciprocal of his share. 1 upon his share means reciprocal of that particular partner's share. Suppose if partner comes for 1/4 share and he brings 50,000 as his share of capital, 50,000 as his share of capital, तो हम क्या करेंगे, that 50,000 will be multiplied by reverse of that 1/4, that will be your 4/1, that will be your 4/1, and this value will be considered as the total capital of new firm. This will be considered as your total capital of new firm. So I can also write it like this: total capital of new firm is equal to, in few questions it will be like that, new capital of firm, new capital of firm is equal to capital of new partner multiplied by 1 upon multiplied by reciprocal of his share, reciprocal of his share, जो भी उसका शेयर होगा, and we will multiply the capital brought in by that particular person and reciprocal of his or her share. After that we have to deduct some values, that the adjusted capital of old partners. How we will calculate adjusted capital, that I will explain to you, but for the time being आपको ये समझ लेना कि adjusted capital of old partners को minus करना है and capital of new partner को भी minus कर देना है, कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर को भी माइनस कर देना है। ठीक, कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर तो डायरेक्टली आपके पास गिवन होगा, ये जो भी 50,000 लेके आया था वही 50,000 आप यहाँ पे लिख देंगे अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसा हुआ तो। बट द केस इज एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, हाउ टू फाइंड द एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स। तो चलो हम चलते हैं एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर फाइंड आउट करने के लिए। एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर जब भी आप फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे आप सबसे पहले एडजस्टेड कैपिटल का क्या क्या आएगा, ये फॉर्मूला ही आप इसको समझ लीजिए। ओपनिंग कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, इफ देयर आर 2 पार्टनर्स तो वी हैव टू राइट द ओपनिंग कैपिटल ऑफ 2 पार्टनर्स। ओके, ओपनिंग कैपिटल ऑफ 2 पार्टनर्स, रिमेंबर ओनली फिक्स्ड, इफ देयर इज फिक्स्ड एंड करंट बोथ, only fixed will be considered, only fixed capital will be considered. So opening capital of old partners will be written over there. Then any type of revaluation profit, if suppose there is increase in the value of stock by 20,000, so we will write 20,000. There is depreciation on furniture 10%, let it be 5,000 rupees, तो 5,000 हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो जो भी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होगा जो आपने सीखा है चैप्टर नंबर 4 में, इससे पहले वाले चैप्टर में रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, सेम रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड रिवैल्यूएशन लॉस हम यहाँ पे ऐड कर देंगे और रिवैल्यूएशन लॉस को हम माइनस कर देंगे इंडिविजुअली। देयर इज अनदर method to calculate this adjusted capital, but we will go through this method only because उसमें फिर हमें partners capital account बनाना है, बहुत सारे काम है, तो उन सब चीजों से बचने के लिए हम पहले ये काम कर लेते हैं। Then next is add accumulated profits and reserves, whatever it is there, like general reserve if it is there, then statement of profit and loss, credit balance in statement of profit and loss is there, so we have to add it and we have to also subtract the losses. जैसे accumulated loss में क्या आ जाएगा आपके पास, डेबिट बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, तो हमें इन सब चीजों को यहाँ से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। क्या करना है, हमें इन सब चीजों को यहाँ से माइनस कर देना है, प्लस इसमें हमें WCR एंड IFR को भी ऐड कर देना है। याद रखना यहाँ पे एक चीज मैंने नहीं लिखा है, दैट इज योर गुडविल। गुडविल को भी हमें क्या करना होता है, राइट ऑफ करना होता है, तो माइनस यहाँ पे लिख लेना आप लोग, माइनस एग्जिस्टिंग गुडविल। अगर कोई बैलेंस शीट में अगर कोई एग्जिस्टिंग गुडविल है तो आपको उसे भी यहाँ से माइनस कर देना है। ठीक है, तो दीज ऑल आर दी थिंग्स जो हमें काम करना है। एंड आफ्टर वी हैव टू WCR IFR अकॉर्डिंगली, हमारे पास जो कुछ भी होगा वी विल बी डूइंग विद WCR, दैट इज वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। इफ the claim is less than WCR and IFR, then obviously the remaining amount will be transferred here, and if the claim is more, then it will be deducted from this place. Okay, so this will result into your adjusted capital. This will result into your adjusted capital.
तो यहां से आपके पास ये एडजस्टेड कैपिटल आ जाएगा। हम अभी कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो उन क्वेश्चंस में ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि हमें एडजस्टेड कैपिटल कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन की तरफ चले। ये आपके पास एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैंने ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को एक बार देखो, पढ़ो अच्छे से। एक बार दोबारा से हिडन गुडविल का फॉर्मूला देख लो। कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, एंड उसमें से हमें माइनस क्या क्या करना है, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर का एडजस्टेड कैपिटल फाइंड आउट करना है, प्लस कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, न्यू, और उसमें से न्यू पार्टनर का भी कैपिटल जो है वो हमें माइनस कर देना है। इसमें से हमें एडजस्टेड कैपिटल को भी माइनस करना है ओल्ड पार्टनर्स को, और न्यू पार्टनर के भी कैपिटल को माइनस कर देना है। तो हमारे पास आ जाएगा हिडन गुडविल की वैल्यू। फिर जैसे हम कैलकुलेट करते आए हैं, गुडविल हमारे पास आ गया, तो फिर इसका ट्रीटमेंट जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। कई बार आपको क्वेश्चन में ओनली हिडन गुडविल फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा। In that case, you won't be going to prepare that profit and loss appropriation account, partners capital account and revaluation account। क्या आप उसमें प्रिपेयर करेंगे कि चलो रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाते हैं? नहीं करेंगे। दैट इज वाई वो जो दूसरा वाला जो फॉर्मूला मतलब ये जो समझाया गया है, सिर्फ वही चीजें हैं जो हमें करना है जब हमें ये निकालना हो। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को देखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, देन वी विल मूव गो टू द सॉल्यूशन पार्ट। सो नाउ मूव टू द सॉल्यूशन पार्ट। आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया है दैट इनका जो ओपनिंग कैपिटल है राम एंड मोहन का, वो 4 लाख एंड 3 लाख रुपीज है रिस्पेक्टिवली। ऑन द सेम डेट गोपाल वाज एडमिटेड टू द फर्म फॉर 1/4 शेयर, एंड वो कितना कैपिटल लेके आया, 3 लाख रुपीज एज अ कैपिटल लेके आया है, एंड शेयर ऑफ कैपिटल, एंड ही आल्सो ब्रॉट हिज शेयर ऑफ गुडविल, वो अपना शेयर ऑफ गुडविल भी लेके आया है। अब गुडविल की वैल्यू तो हमारे पास है ही नहीं, किसके अकॉर्डिंग हम निकालेंगे गुडविल, हमें पता है क्या? नहीं। तो यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट आएगा, हिडन गुडविल का कंसेप्ट आएगा। ओके, सो नाउ मूव टू द सॉल्यूशन पार्ट। सॉल्यूशन देख लेते हैं कि क्या है हमारे पास इसका। सो सॉल्यूशन पार्ट में जब आप जाएंगे तो आपको सॉल्यूशन दिखेगा, ये देखो हमने ये काम किया। ठीक है, जब ऊपर वाला पॉइंट छोड़ दो, अभी हम आ जाते हैं वर्किंग नोट पे। वर्किंग नोट में आपको क्या निकालना है, हिडन गुडविल निकालना है। हिडन गुडविल क्या हो जाएगा आपके पास, हिडन गुडविल इज इक्वल टू कैपिटल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर। तो न्यू पार्टनर कितना पैसा लेके आया था, 3 लाख रुपीज, मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, ही कम्स फॉर 1/4 शेयर, 1/4 के लिए आया था। तो द रेसिप्रोकल ऑफ 1/4 इज योर 4/1, रेसिप्रोकल ऑफ 1/4 इज योर 4/1, and after that I have to deduct the adjusted capital. But in this question we have not been given with any revaluation of assets, nothing realized, reassessment of liabilities, then WCR was also not given, then profit loss and reserve, nothing was given. So we have written only that value, that is what opening capital of the partners, that is your 4 lakh and 3 lakh of Ram and Mohan, and this 3 lakh will be added because of the new partners capital. So we have learned this formula only ना, हमने यही formula पढ़ा था, यही होता है हमारे पास formula, reciprocal capital multiplied by reciprocal of the new partner share minus adjusted capital of old partner plus capital of new partner। and हमने ये भी पढ़ा था कि adjusted capital में हमें क्या क्या करना होता है। तो देखो, रिवैल्यूएशन ओपनिंग कैपिटल था हमारे पास, ये हमारे पास दिया हुआ नहीं था, रिवैल्यूएशन लॉस वाज नॉट देयर, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वाज नॉट देयर, एक्यूमुलेटेड लॉसेस वाज नॉट देयर, डब्ल्यूसीआर एंड आईएफआर से रिलेटेड कोई कांसेप्ट दिया हुआ नहीं था हमारे पास। सो द ओपनिंग कैपिटल विल बी योर एडजस्टेड कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल विल बी योर एडजस्टेड कैपिटल। सो जब मैंने इसको ये वैल्यू फाइंड आउट किया तो आई came to 3 lakh multiplied by 4, that comes to 12 lakhs, 4 plus 3 7, 7 plus 3 10, 10 lakh हमारे पास ये चला गया। तो हमारे पास गुडविल की वैल्यू कितनी आ गई, 2 लाख रुपीज। नाउ द वैल्यू ऑफ गुडविल इज 2 लाख रुपीज। तो अब गोपाल कितना लेके आएगा, गोपाल if Gopal comes for 1/4 share, so he will bring 1/4 of that 2 lakh rupees। वो 2 लाख रुपए का क्या लेके आएगा, 1/4 ही लेके आएगा। तो 2 लाख का हमने यहाँ से 1/4 माइनस कर दिया, सॉरी मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट किया, तो कम्स टू 50,000 रुपीज। तो कितना वो लेके आएगा प्रीमियम फॉर गुडविल, 50,000 रुपीज लेके आएगा। सो द एंट्री इज कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 3,50,000। कहां से आया, गोपाल्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल के लिए वो 3 लाख रुपीज लेके आया था, टू प्रीमियम फॉर गुडविल 50,000 लेके आया, जो अभी हमने फाइंड आउट किया। एंड सो इन टोटल ही ब्रॉट अराउंड
3,50,000 rupees. He brought 3,50,000 rupees to the firm. Okay, and we know that what to do with the premium for goodwill. Premium for goodwill के लिए हम क्या करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में बांट देते हैं. तो यहाँ पे आप एंट्री पास कर लेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट एंड टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. व्हाई इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? बिकॉज वी हैव स्टडीड दैट इफ only the new partner's share is given, then old partners sacrifices in their old profit sharing ratio. कितने लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आया? नहीं आया तो हम इसे दोबारा करते हैं. You can raise your hands. अच्छे से. Okay, so these all things are given here. So, अब हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, देखते हैं व्हाट इज आवर सॉल्यूशन. सॉल्यूशन में दिस इज योर कैलकुलेशन पार्ट. वर्किंग नोट में हम आते हैं. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द एडजस्टेड कैपिटल बिकॉज गुडविल, द वैल्यू ऑफ गुडविल इज नॉट गिवन टू अस. सो व्हाट आई हैव रिटन इज capital of x and y is being written here. Then reserve, that is your 25,000, that is given in the question. Reserve is 60,000 and profit and loss is 25,000. It is being given here. So मैंने यहाँ पे इसको ऐड कर दिया है. ये देखो, प्रॉफिट, रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस दोनों आपके पास 25 एंड 60,000 मैंने यहाँ पे लिख दिया है. देन ऑन द लेफ्ट, on the asset side it was given as advertisement suspense account. It is your loss or it can be said as your fictitious asset. ये आपके लिए क्या है, fictitious asset आपके पास given है. तो हमने क्या किया, इसी में से हमने इसको fictitious asset को यहाँ से हमने क्या किया, माइनस कर दिया fictitious asset को. So the adjusted capital of goodwill, adjusted capital of x and y कितना आ जाएगा हमारे पास, 1,50,000. adjusted capital कितना आ जाएगा हमारे पास, 1,50,000. कितना आ गया हमारे पास adjusted capital, 1,50,000. Now हमारे पास adjusted capital आ गया है. Now we will move to find out hidden goodwill. तो hidden goodwill का फॉर्मूला क्या होता है, share brought in by, capital brought in by the new partner multiplied by reciprocal of his or her share. So 50,000 वो लेके आया Z, and कितने शेयर के लिए आया था वो, 1/5 शेयर के लिए आया था. So it will be multiplied by 5/1 reciprocal of his share minus adjusted capital of old partners and that is the capital brought in by the new partner. So if you multiply 2,50,000 minus 2 lakh, it will result into 50,000. So the value of the goodwill is 50,000. अब वो Z जो है वो कितना लेके आएगा, 50,000 का 1/5 लेके आएगा. तो कितना आ जाएगा वो, 10,000 वो लेके आ जाएगा. ये कैलकुलेशन एक बार दोबारा से देख लो, ठीक है, अच्छे से देख लो. एडजस्टेड कैपिटल हमने x और y का यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे लिख दिया. ओपनिंग कैपिटल जो भी था, रिजर्व में जितना पैसा था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितना पैसा था वो हमने यहाँ पे लिख दिया. फिर हमने यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट में भी जो पैसा था, क्योंकि वो हमारे लिए लॉस है, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया. फिक्टिशियस एसेट है, तो दैट इज व्हाई हम इसे यहाँ पे लिख दिया, माइनस कर दिया. देन हमारे पास आ गया एडजस्टेड कैपिटल ऑफ x एंड y, 1,50,000 रुपीज. ठीक है. हिडन गुडविल इज इक्वल टू, आपने यही फाइंड आउट किया, 50,000 multiplied by 5. 5/1 is your reciprocal of their share, minus 1,50,000 plus 50,000, जो 1,50,000 is your adjusted capital and 50,000 is the capital brought in by the new partner. So your hidden goodwill की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 50,000. और Z कितना लाएगा गुडविल का, 1/5 शेयर लेके आएगा. तो कितना आ गया इसके पास, 10,000 रुपीज. नाउ हम एंट्री क्या पास करेंगे, Z's करंट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 10,000 रुपीज. क्योंकि हमें ये यहाँ पे कुछ नहीं बोला गया था कि वो एज इज कैपिटल, यहाँ पे हमें ये पता नहीं था कि वो अपने शेयर ऑफ गुडविल लेके आएगा नहीं आएगा, कितना क्या करेगा. तो इसीलिए हमने यहाँ पे अपने सेफ्टी के लिए Z's करंट अकाउंट लिख दिया. अगर ये क्लियर होता कि Z हमें पैसा लेके आएगा तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे Z's कैपिटल अकाउंट नहीं लिखता, तो हम यहाँ पे कैश और बैंक अकाउंट